Assalamu alaikum everyone and a very good evening. I welcome you all to lecture 3 of Ababil English. Before we move on to our topic today, let's recap a bit what we studied yesterday. So first off, we talked about the types of questions. We talked about what are their ingredients, how can we form different types of questions, how can we shuffle their ingredients. We also talked about tense called present progressive tense, which you already know as present continuous. We talked about a few new uses of present simple and present continuous, and we talked about an idiomatic expression in the daily dose. Today we are going to discuss past simple and past progressive. As you can see with the name, past simple is pretty simple. We are going to use just 3 of the ingredients and it's quite easy, and we've already discussed the present simple. It's not going to be a problem at all. Also, I just wanted to mention at this point of time that I'm using the English language communication deliberately here because I want you to improve your listening comprehension as well. And I am sure that you understand and you realize that listening comprehension for any language, be it English or any other language in the world, it needs an ecosystem. By ecosystem, I mean that you have to be in that zone where you are listening to stuff, you're reading, you're writing, and you're paying attention to the details so that you understand how the language pattern works. And this is how you can pick up language. And inshallah ta'ala, by the end of this course, we're trying to get a hold and a knack of things, and in level 2 inshallah we'll be focusing on spoken or verbal communication only. In this module and in this level 1, I want you to not only just improve your written communication, I want you all to brush up your concepts, revise them, go online, go to library, take up all the books, reference books, and read a lot. Because reading is directly proportional to writing. The more you read, the better your writing becomes. So I'll also be using bilingual approach in this lecture as well, so that it's easier for you to get a knack of things and to get into the swing of things. Also, I just wanted to say on a very important note that in this course, I know that you have a lot of expectations, and I'll try my best to fulfill those expectations inshallah by the end of the course, but just understand and realize that I have a lot of expectations from you as well. And the top of the list is that I need your 110% cooperation and support and emotional intelligence, which means that whenever a new challenge comes, you just don't have to panic. You have to accept it, you have to go online, you have to ask me what the problem really is, how can we fix it, how can we work around it, and just try and figure out how it works, and inshallah everything will be fine. Also, I need your dedication and 100,000% effort in this, because whenever we take a course, whether it's in some institution, whether college, university, maybe you're taking admission in an extension school, maybe you're taking an online course, it's not just that you take the course and you pass the papers, you solve the project work and it's done and you have that skill. No, it doesn't work like that. And I'm sure that you all know that it doesn't work like that, because the way it really works is you have to put your 100,000% effort in it to get the full grip and command over it and to go to excellence and the perfection level. And this is the same that I want you to do in this course as well. These lectures and the project works and the assignment are going to serve as an intrinsic motivation factor for you, and this is, I'm sure, the course and the entire content and my efforts are going to motivate you to learn and learn a lot in life about these topics that we're going to discuss and about other stuff that we discuss. So with this note, let's move to the topic today. As I said, ingredients of past simple are just 3. We use a subject, a verb, and of course the second form because it's the past tense, and object.
And remember, we're talking about the affirmative sentences. Let me give you an example. He ate brownies yesterday. As you can see, I've used second form of verb, which shows that I'm talking about something that happened yesterday. Take a look at this example. Sarah went out for dinner last night. Again, I have used went, which is second form of the verb, and dinner last night, which means the dinner happened last night, so I'm talking about it now, which is past, and I'm using second form of verb. What about the negative sentences? Let me give you the ingredients first. Subject, and then the helping verb, which is did. Then verb, and then object. If you notice, the ingredients are somehow different from the positives. And this is very, very important because I need you all to take note of this, that when we use the helping verb did, we never are going to use the second form of verb. This is the biggest mistake that I have seen and noticed and checked and marked in the papers, that a lot of graduate students do this mistake, and it's not a mistake, it's a blunder. So you have to take notice of this and never do it, that whenever you use did form helping verb, you're not going to use the second form. You always use the first form. How are you going to do that? For example, Jamil did not go to the party. 90% of the students make this mistake and they'll say Jamil did not went to the party. This is extremely wrong. This is not grammatically correct. Please don't do it ever. Also, Fatma did not listen to the instructions. ये जो did not वाला part है, इसको आप contraction में भी बोल सकते हैं. For example, Fatma didn't listen to the instructions. पाकिस्तानी स्टाइल में जो प्रैक्टिस है बोलने की, वो है didn't. आपने इसको didn't नहीं बोलना, आपने इसको contraction में जब लिख रहे होते हैं तो आपने बोलना भी वैसे ही है. आप इसको कहेंगे Fatma didn't listen to the instructions. Jamil didn't go to the party. या फिर फुल फॉर्म में कहेंगे Jamil did not go to the party. Fatma did not listen to the instructions. दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है जब हम पास्ट सिंपल का नेगेटिव बना रहे हैं. पॉजिटिव या अफर्मेटिव में हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, वाज, वर, डिड कुछ नहीं लगाते और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस करने से पहले ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि वर्ब के साथ कोई एस या ई एस नहीं आएगा, और वॉज और वर के साथ सिंगुलर है अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या आई. इन सब्जेक्ट्स के साथ आप हमेशा वॉज लगाएंगे, और अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उनके साथ वर लगेगा. What about the questions which are interrogatives? The ingredients are helping verb, did, was, or were. You can play around with these three. Then comes the subject, then the main verb, and of course the first form and object, and then of course the question mark. For example, did you complete the project work last night? मैंने helping verb did लगाया शुरू में, उसके बाद मैंने complete verb की first form ही रहने दी है. Were you able to sign into the classroom yesterday? Again, signed in नहीं कहा मैंने, sign in कहा है. verb के साथ भी first form लगाई है क्योंकि interrogative है. Was the lecture easily available to you? Available, easily, was, ये इन सब में आप देखेंगे अगर तो मैंने वही ingredients फॉलो किए हैं. तीनों helping verb मैंने आपको लगा के examples दे दिए हैं. Did Somya attend the class yesterday? Did के साथ attend लगाया है, attended नहीं लगाया. Again, आप first form यूज़ कर रहे हैं negatives में, interrogatives में, second form यूज़ कर रहे हैं positive या simple या affirmative sentences में. And we are talking about past simple. Last example is, were Raza and Ali friends 2 years ago? We're talking about the past and we're talking about two subjects and we're asking if they were friends 2 years ago. So we're using were because there are two subjects and we're not using any verb
we're just asking or inquiring for a piece of information. Here comes a different type of questions where we are using WH word in the start and then we are using the helping verb. So how you go about it is, where were you going at 3 a.m. yesterday? Or could be a choice question or a tag question. For example, Raza and Ali were at the party last night, weren't they? तो आप इसको were not they कह सकते हैं, लेकिन जब आप verbal communication करते हैं तो a native American would speak like this: Raza and Ali were at the party last night, weren't they? अगर मैं यहाँ पे I लगा दूँ तो मैं इसका टैग क्वेश्चन कैसे बनाऊंगी? I was at the party last night, ain't I? अब मैंने ये जो ain't I बोला है, इसको मैंने कॉन्ट्रैक्शन में ही बोला है. जब आप इसको पूरा फुल फॉर्म इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? I was at the party last night, comma, were not I, weren't I? तो हम इसको I के साथ हमेशा देखेंगे कि were लग रहा है या was लग रहा है या am लग रहा है. हम प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में जब I को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आपने अभी क्वेश्चंस बनाने असाइनमेंट में, तो उसमें आप I जब यूज़ करोगे तो I के साथ am या am not यूज़ करें. उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं AIN''T. इसी तरह यहाँ पे जैसे मैंने WEREN''T, तो मैंने इसको वर नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मैं बोलने में भी उसे कॉन्ट्रैक्ट करूँगी. रज़ा एंड अली वर एट द पार्टी लास्ट नाइट, weren't they? I was at the party last night, wasn't I? तो wasn't I जब आप बोलोगे तो उसमें भी wasn't I को was not I भी कह सकते हैं, वो सही है. लेकिन speak like a native American, wasn't I, weren't I, ain't I, don't she, doesn't she, इन दोनों में, इन सब में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैंने क्या सही बोला है और टेक अ नोट ऑफ इट इन योर नोटबुक्स. There's another example, you ate my chocolate, didn't you? तो मैंने यहाँ पे गौर कीजिए कि did not you नहीं कहा, बिकॉज मैंने उसको लिखा did not you नहीं है, मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. You ate my chocolate, didn't you? आपने इसको didn't you नहीं कहना. मैं दोबारा बता रही हूँ, इसको आपने didn't you नहीं कहना, इसको आपने कहना है didn't you. फॉर जैसे कि स्पेलिंग हो DINT, didn't you. This is how the native people speak. Alright. आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने कल भी पढ़ा था, that was a choice question, जिसमें आप इंक्वायर करने वाले को दो तरह की ऑप्शंस दे देते हो to choose from and you say was the concert good or bad. इसके कुछ यूजेस मैंने इस स्लाइड पे लिख दिए हैं और ये they are pretty obvious and they are pretty simple, self-explanatory, लेकिन इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे और इसके अराउंड हम जब प्रोजेक्ट वर्क में एक टास्क करेंगे तो ये सारे उसमें भी यूज़ हो जाएंगे. बिकॉज फॉर एग्जांपल आप इसको कोई भी सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन पास्ट बताने के लिए यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट. आई सॉ अ घोस्ट लास्ट फ्राइडे. अब आप में से जिनको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस याद आ रहा है वो कहेंगे कि कंप्लीटेड एक्शन तो पास्ट परफेक्ट में होता है, तो हम इसको पास्ट सिंपल में क्यों यूज़ करें, और अगर कर रहे हैं तो दोनों में क्या फ़र्क है. ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब पास्ट परफेक्ट हम डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कंप्लीटेड एक्शन जब हम इस्तेमाल करें या हमने बताना होता है तो हमें कौन सा टेंस यूज़ करना चाहिए, वो कौन सी सिचुएशन में वेरी करता है. So we'll discuss that in the next lecture. You can express habits in the past. For example, when I was young, I watched lots of television every day. आप stative verbs के साथ भी इसको use कर सकते हैं. ये सारे usage आप एक बार go through करेंगे and we'll have a project work around this. Also, we were talking about forms of verb, first, second, third form. And we discussed this in the first lecture as well. So I just thought of including the types of verb which are irregular and irregular. ये verb की दोनों types हम उसकी forms बनाने के बेस पे डिसाइड करते हैं. For example, regular verbs वो हैं जिनमें आपको you can predict कि आपने इसके end में ed ही लगाना है. For example, purchase की second और third दोनों forms एक जैसी ही हैं और उसमें आपको पता है कि दोनों forms में ed और ed आएगा.
पुल का सेकंड और थर्ड फॉर्म भी ऐसे ही है, पुल्ड। पनिश के आगे आप ईडी लगा दोगे तो सेकंड फॉर्म भी वही है, थर्ड फॉर्म भी वही है। सो पनिश बिकम्स पनिश्ड एंड पनिश्ड, क्वेश्चन बिकम क्वेश्चनड एंड क्वेश्चनड। इसी तरह रेगुलर वर्ब्स की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप रेफरेंस रीडिंग जो मैं इसके साथ दूंगी उसमें आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। ये तो थी रेगुलर वर्ब्स की बात। व्हेन वी टॉक अबाउट इररेगुलर वर्ब्स तो उसमें आपका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल या सेकंड और थर्ड फॉर्म भी जिसको कहते हैं वो सेम नहीं होती। यू कांट प्रिडिक्ट कि आप इसमें ईडी लगाओगे, बिकॉज फॉर एग्जांपल डू की सेकंड फॉर्म इज डेड एंड थर्ड फॉर्म इज डन। आप डू के साथ ईडी लगा के उसकी फॉर्म्स नहीं बना सकते। सो दिस इज एन इररेगुलर वर्ब, जिसका मतलब है कि कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है जो आप बता सको या आप अंदाज़ा लगा सको, वो डिफरेंट होता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल टीच की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है टॉट। इट्स नॉट टीच के साथ ईडी नहीं लग रहा, टॉट बन जाता है। इसी तरह कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब्स भी हैं जो सेम रहते हैं, जिनकी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने राइट साइड पे अगर देखेंगे यहाँ पे तो रन की सेकेंड और थर्ड फॉर्म रैन और रन, पुट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म पुट और पुट, कट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म कट एंड कट। तो ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं वेयर यू कांट प्रिडिक्ट और यू कांट टेल के आगे वाली फॉर्म कैसी होगी, और वो आप जिस तरह से वो चलती आ रही हैं उसी तरह से उनको फॉलो करते हो इरेगुलर पैटर्न में। लेट्स मूव टू पास्ट प्रोग्रेसिव विच इज पास्ट कंटिन्यूअस। दिस इज ऑल्सो प्रीटी सिंपल। इसके इंग्रेडिएंट्स में ऑब्वियसली सबसे पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में दो चॉइसेस हैं, हम वाज लगा सकते हैं या वर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, और ऑफ कोर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन साथ हम ing लगा देंगे, जिसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और इसको ing फॉर्म भी आम जुबान में कहते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और इसके साथ ing ऐड कर देंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। और उसके बाद एंड पे आप ऑब्जेक्ट ऐड करते हो। फॉर एग्जाम्पल I was going to school, or they were playing chess, or he was ordering food online, and the last example being my cat was taking a nap. इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको प्ले अराउंड करके दिखाया। What if we talk about the negative ones? सब्जेक्ट के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही, was और were, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाने से पहले आप लगाओगे नॉट लगा के ऑफ कोर्स द मेन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म एंड ing एंड यू एंड इट विद एन ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स अब आपने खुद सोचनी है और हम इसको प्रोजेक्ट वर्क में डिस्कस करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, अभी हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट सिंपल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आपने प्रोजेक्ट वर्क में भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस इन पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव। सबसे पहले ऑफ कोर्स द हेल्पिंग वर्ब एंड द सब्जेक्ट, द वर्ब, ऑफ कोर्स द फर्स्ट फॉर्म एंड ing because we are talking about continuous, and then the object। और इसमें चार टाइप्स थी जो हमारी yes no questions, चॉइस क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस और टैग या टेल क्वेश्चंस। ये इंग्रेडिएंट्स फॉलो करके प्रोजेक्ट वर्क में हम इन चारों टाइप्स के क्वेश्चन बनाएंगे यूजिंग ओनली एंड ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, इसके यूजेस बहुत आसान है। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई इंटरप्टेड एक्शन था पास्ट में, फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट कि जब तक आप ये काम कर रहे थे उसके बाद क्या हुआ यू डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई अराइव्ड लीजा वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। इसके बाद की इंफॉर्मेशन हमें उस फिक्रे में से नहीं मिल रही। तो इंटरप्टेड एक्शन जो है, जो व्हेन आई अराइव्ड यानी मेरे आने से जो इंटरप्ट हो गया पास्ट में, वो एक्शन बताने के लिए हम हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। विच मीन्स कि जब पास्ट में जब तक हम थे वो एक्शन तब तक जारी था, उसके बाद क्या हुआ वी हैव नो आइडिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन यूजेस टेंस का है कि हम पैरेलल एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे पास्ट इवेंट की बात करें जहाँ एक साथ 4 5 6 काम हो रहे थे,
तो हम कहेंगे द बेबी वॉज क्राइंग, आई वॉज टेकिंग अ बाथ, मॉम वॉज कुकिंग, माई ब्रदर वॉज गोइंग टू द स्कूल। तो ये 4-5 काम जो मैंने बता दिए, तो इन सब में मैंने, अगर आप नोट करें तो मैंने ING लगाया फर्स्ट फॉर्म के साथ और मैंने पास्ट कंटिन्यूस लगाया, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एन इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इट वॉज गोइंग ऑन and I don't know, I have not given the information to the reader or the listener that what happened after that. So it was continuous until I talked about it. इसी तरह अगर पास्ट में कोई अरेंजमेंट्स थे, कोई प्लान्स हो रहे थे, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अपसेट बिकॉज आई वॉज लीविंग द प्लेस दैट मॉर्निंग. लीविंग द प्लेस का मतलब है इट वॉज अरेंज्ड. It was arranged in the past. It happened yesterday. So I was upset because I was leaving. Alright. हमने interrupted actions की जब बात की तो उसमें when I arrived में आपको कोई point of time नहीं दिया हुआ. Window of time provide की गई है when I arrived, लेकिन specific time भी अगर दिया हो, for example, I was last night at 11 o'clock I was sleeping. Last night until 3 o'clock I was working. तो इन दोनों में भी आपने past continuous यूज़ किया. Yesterday we talked about an abbreviation which was FYI, and I discussed with you all that we use it in email communication. Today I've come up with another abbreviation which is PFA. अगर आप देखेंगे तो तीनों वर्ड्स कैपिटल में मैंने लिखे हैं. जब भी आप ईमेल में कुछ अटैच कर रहे होते हैं, आपने सेंडर को कोई चीज़ दिखानी है उसके रिव्यू के लिए, कोई भी फाइल या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई लिंक है या कोई मीडिया की कोई चीज़ है जिसमें आपके डिफरेंट ऑडियो या वीडियो चीज़ें हो सकती हैं. जब भी आप कोई चीज़ अटैच करते हैं ईमेल में, तो आप ईमेल की बॉडी में हमेशा उसका रेफरेंस देने के लिए लिखते हैं PFA. इसका फुल फॉर्म है प्लीज़ फाइंड अटैच्ड. फॉर एग्जाम्पल, I have emailed all of you, and it's just for the sake of example. Please do not go into your inbox and find कि मैंने क्या भेजा है. It's just for the sake of example कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने आपको कोई लिंक भेजा है, तो मैं आपको ईमेल अगर लिखना चाहती हूँ उसके हवाले से, तो मैं लिंक अटैच करूँगी ईमेल में, आपका ईमेल एड्रेस डालूँगी, सब्जेक्ट के फील्ड में जो भी सब्जेक्ट है या जो भी उसका नाम है वो लिखूँगी, और ईमेल की बॉडी में लिखूँगी PFA, the download link attached with the project work. PFA means please find attached or please find appended. So this looks very very professional. आप इसको FYI के साथ PFA भी अब आपने जहन में रखना है. Alright, let's conclude our lecture with the daily dose. And this one is very interesting and it's very apt because this is what's happening for past 2 days. Let's see what it is. In a pickle, and I'm sure कि आपको पता है कि pickle का word वैसे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. pickle को उर्दू में हम अचार कहते हैं, अचार. लेकिन जब आप इसका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, इसको एक फ्रेज़ में यूज़ करते हैं, तो in a pickle का मतलब है किसी मुसीबत में फंस जाना, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जिससे आपको फिक्स करना नहीं आती, जो आपको नहीं पता, यू कांट फिगर आउट कि इससे बाहर कैसे निकलना है. नीचे उसका मीनिंग भी मैंने लिख दिया है. इन ट्रबल, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और पोजीशन. हाउ आर वी गोना यूज इन दिस सेंटेंस? फॉर एग्जांपल, दिस हैज़ बीन योर sentences for past 2 days that we are in a pickle again and we need your help, which means कि हम मुसीबत में हैं, हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं और हमें दोबारा से आपकी हेल्प चाहिए. We are in a pickle again, we are in trouble again and we need your help. तो आपने अब ये डेली डोज TDS आपने इसको भी यूज़ करना है. TDS मीन्स ऑफ कोर्स थ्राइस अ डे. और आपने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क में, प्रोजेक्ट वर्क नंबर 3 में, वो 3 सेंटेंसेस जो आप पूरे दिन में किसी के भी साथ कम्युनिकेशन करते हुए बोलेंगे, और इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट शर्त है. आपने इसका कंटेक्चुअल इस्तेमाल करना है. जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो आपने कहना है आई एम इन अ पिकल हियर, I am in a pickle again and I need your help. I need you to support me. I need you to figure it out for me. तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने बोलने की कोशिश करनी है. डेली कम्युनिकेशन में जब आप दूसरों से बातचीत कर रहे होते हैं तो आप ये बोलने की कोशिश करेंगे और मुझे सेंटेंसेस लिख के प्रोजेक्ट वर्क में बताएंगे कि हमने इसको इस सिचुएशन में
इस तरह फ़िक्रा बना के इस्तेमाल किया था। ऑलराइट, ऑन द एंडिंग नोट लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट वर्क्स। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अनाउंस करनी थी वो ये थी कि प्रोजेक्ट वर्क एक तो आपका डेडलाइन में कंप्लीट करना ज़रूरी है। डेडलाइन आपके प्रोजेक्ट वर्क के साथ ही गूगल क्लासरूम में लिखी होती है कि आपने किस दिन किस टाइम तक सबमिट करानी है। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं उस पेन के ऊपर या उस इंटरफेस के ऊपर जब आप जाओगे, वेदर यू यूजिंग योर लैपटॉप और डेस्कटॉप सिस्टम और योर एंड्रॉयड और आईफोन, तो उन सब में आपको जब प्रोजेक्ट वर्क जहाँ पे थंबनेल नज़र आएगा उसके साथ ही आपको टाइम और डे भी नज़र आ जाता है कि आप किस दिन किस टाइम तक इसको सबमिट कर सकते हैं। एक ये बात थी, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि द मोमेंट यू सबमिट योर असाइनमेंट और द प्रोजेक्ट वर्क इन द गूगल क्लासरूम, आपको मुझे अलग से एक्नॉलेजमेंट के लिए पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट पैनिक अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे ही आप उसको सबमिट करते हैं, टर्न इन का बटन प्रेस करते हैं, एट द वेरी मोमेंट आई रिसीव एन ईमेल इन माई जीमेल इनबॉक्स विद योर फुल नेम कि XYZ पर्सन ने असाइनमेंट सबमिट करा दिया है और ही टर्न्ड इन एट दिस टाइम। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि रिकॉर्ड मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि असाइनमेंट आ गई है और आपको इंडिविजुअली मुझे मैसेज करके पूछने की ज़रूरत है। इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, बिकॉज़ मुझे असाइनमेंट्स ईज़िली मिल जाती हैं, मैं उनको फॉलोअप भी कर रही हूँ। तीसरा पॉइंट प्रोजेक्ट वर्क के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये था कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड दिस क्वेश्चन कि हमें चेक होकर कब मिलेंगी। तो मैंने पहले भी ये ग्रुप के FAQs में बताया था और मैं एक बार फिर इसको यहाँ रीइटरेट कर रही हूँ ताकि आप सब लोग एक साथ ही सुन लो। वो ये कि जैसे ही एक प्रोजेक्ट वर्क की डेडलाइन ओवर होगी उसके बाद उसके अगले दिन से एक एक करके आपको प्रोजेक्ट वर्क अपना वापस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इट टेक्स सम टाइम कि मैं पूरा उसको अच्छी तरह गौर से गो थ्रू करूँ और उसके बाद एक एक चीज़ के ऊपर कमेंट करूँ, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो बी पेशेंट अबाउट दैट प्लीज़। ऑल्सो अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट वर्क की डेडलाइन आज रात को है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कल सुबह से शाम तक लोगों को फीडबैक समेत असाइनमेंट्स जो है वो वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह हर प्रोजेक्ट वर्क के लिए होगा कि जैसे ही उसकी डेडलाइन ख़त्म होगी उसके बाद असाइनमेंट्स चेक होना शुरू होंगी। एंड आई होप कि ये मैंने ये वाली बात भी क्लियर कर दी है। तो अपने प्रोजेक्ट वर्क पे दिल लगा के काम करें और उसको अच्छा करें और अपनी लर्निंग जो है वो बाकी लोगों से भी शेयर करें, ग्रुप में भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके बारे में जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी नीचे लिख सकते हैं। आपको मेरा पर्सनलाइज फीडबैक इंशाल्लाह हर चीज़ पे मिलेगा, एंड दैट इज़ टू इंश्योर कि हमारी इंग्लिश की रिटन कम्युनिकेशन, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उनकी ग्रास्प अच्छी हो, उन पे ग्रिप अच्छी हो आपकी, उसको अच्छी तरह ग्रास्प कर लो, उसको रिवाइज़ करो अच्छी तरह, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह ताला टुगेदर, and see you soon in the next lecture.